A very warm good morning to everyone, respected madam, teachers, principals, sir, and all my dear friends. Myself, Dolly Mishra. First of all, thank you so much for giving me this wonderful chance to stand in front of you all and giving speech on this very important and very precious day known as Republic Day. Republic Day को गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है. Today we are celebrating 77th Republic Day. आज ही के दिन 1950 में हमने हमारा संविधान बनाया था और संविधान बना था बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के. उनका एकमात्र मंत्र यह था कि इंसानों को ना ही सिर्फ जीना चाहिए बल्कि पढ़ लिख के अपना नाम रोशन करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा था कि जो पिए दूध शेरनी का वो ही दहाड़ता है, जो पिए दूध शेरनी का वो ही दहाड़ता है, जो पढ़ता लिखता है वो ही आगे बढ़ पाता है. The main vision for constitution was freedom, equality and justice. Great leaders like महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी देश को आजादी दिलाने के लिए. हमारा इतना ही मूल मंत्र है कि हमें इक्वालिटी, इंसानियत के साथ जीवन जीना चाहिए. हमारे साथ आसपास के लोग, हमारे भाई बंधु, हर किसी के साथ मानवता से पेश आना चाहिए. वो कहते हैं ना, न जियो धर्म के लिए न मरो तुम धर्म के लिए, मानवता ही एकमात्र धर्म है मनुष्य का, मानवता ही एकमात्र धर्म है वतन का, तुम जियो वतन के लिए. जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को आजादी तो देते हैं, साथ ही साथ संस्कार के एक बारीक से डोर से बांध के रखते हैं. सेम उसी तरह हमारे ग्रेट लीडर्स ने हमें ना ही बल्कि आजादी दिलाई, साथों साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया ताकि हम फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वालिटी को फॉलो कर सके. अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी. कुछ नशा है तिरंगा के आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के शान का, कुछ नशा है तिरंगा के आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के शान का, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा है हिंदुस्तान की आन बान और शान का. धन्यवाद. जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. Good morning everyone, principal sir, respected teachers and all my friends. I am Astos Tiwari from Diploma first year. I am going to present a speech on Republic Day. Monumental effort of our leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar and selfless sacrifices of our freedom fighters. As a college students, we are the architects of India future. The theme of 2026 revolves around our collective responsibility towards building a stronger and inclusive nation. While our freedom fighter gives a free country, it's our duty to make it better one. This means upholding the value of justice, liberty, equality, fraternity, and enrich our constitutions. In a world rapidly changing with technology, our focus should be on sustainable development, education, and innovations. As the youth, we must foster an inclusive mindsets and contribute to national progress through discipline and hard work. Let us pledge to move beyond just celebrating this day and embody the spirits of responsibility. Let's keep our nations clean, our action honest, and our minds open to unity and diversity. Jai Hind. Very good. नेक्स्ट स्पीच की कड़ी में मैं बैचलर फर्स्ट ईयर से सौम्या पांडे को बुलाना. वार्म गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड टीचर, प्रिंसिपल, टीचर्स, सीनियर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. माई सेल्फ सौम्या पांडे, अ स्टूडेंट ऑफ बी फार्म फर्स्ट ईयर, and I am here to deliver a short speech on the topic Republic Day. Today we are gathered here to celebrate the proud occasion of 26 January, Republic Day of India. It is the day when our constitution came into force in 1950 and India became a sovereign democratic republic. Our constitution was drafted under the great leadership of Dr. B.R. Ambedkar, and it gives us fundamental rights such as equality, freedom and justice. It teaches us that every citizen of India is equal no matter their religion, caste or gender. Republic Day reminds us of sacrifices of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Rani Lakshmi Bai, who gave their lives for our country's independence. Today, India is progressing in science, education, health, and technology. As students, we are the future of this nation. It's our duty to study sincerely, follow discipline, and work honestly to make India strong and developed. Let us take a pledge
to respect our constitution, obey laws, serve our country with unity and dedication. In the end, I would like to say Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. अंशु सिंह को बुलाऊंगी उनके स्पीच के लिए, वो आए अपनी स्पीच दें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। आज के शुभ अवसर पे मैं अपनी छोटी सी कविता कहना चाहूँगा और मैं क्या लिखता हूँ सुनिएगा। मैं लिखूँ पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूँ, मैं युद्ध लिखूँ हल्दी घाटी, मैं राणा का कोहराम लिखूँ, मैं लिखूँ सदर शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूँ, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की, वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी की, अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों के आंखों के अंगार लिखूं, मैं लड़ से लड़ने वालों को लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के वीरों को। और जैसा कि आप सब जानते हैं इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं लिखते, वीर भोग वसुंधरा। और इस संकल्प के साथ मैं एक अपनी रश्मि रथी की कविता रखना चाहूंगा कि तो तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साहब धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तुम बाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम इसी में खुशी से खाएंगे, परिजन की हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विघ्न झंकार सकल, मुझ में लय है फंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष वद विशाल, बुद्ध परिंद मंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरे पग मेरे हैं, दिखते जो गहन चित्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दिश हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अक्षर न सुर मनुष्य जाति मत, सतकोट चंद्र सतकोट सिंह, सतकोट दंड लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यातना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी वो पर अग्नि फकर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वास मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू वो शाही होगा, हिंसा का वरदाई होगा, कि सभा सन्य सब लोग डरे, या चुप चुप थे या फिर मौन पड़े, सब पुकारते थे जय 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 जय। इसी के तहत गणतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत बेहतरीन, ये कविता आपने पहले भी प्रेजेंट की है मेरे ख्याल से 25 सितंबर को, वहां भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं अब स्पीच के लिए डिप्लोमा सेकेंड ईयर से दीक्षा पांडे को बुलाऊंगी, वो आए और अपनी स्पीच दें। Good morning everyone, respected principal, sir, teachers, our batchmate and junior. Myself Diksha Pathak from Diploma second year student. Firstly, I wish you to all happy Republic Day. Today we have gathered here to celebrate Republic Day, a day that reminds us of the strength of our Constitution and the spirit of our democracy. यह दिन केवल एक तारीख नहीं, यह हमारे अधिकारों की पहचान है। कलम से लिखी गई तकदीर हमारी संविधान भारत की जान है। Our constitution gave us freedom of thought, expression and belief. It teaches us to respect every citizen and to stand united even in diversity. अनेकता में एकता है भारत की शान, हर भाषा हर धर्म एक देश की पहचान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजे यही स्वर, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।
On this proud day, we remember the sacrifices of our freedom fighter and vision of Dr. Ambedkar and other great leader. उनके सपनों का भारत हम बनाएंगे, नफरत नहीं प्यार को अपनाएंगे, हर हाथ में हो मेहनत की रेखा, हर दिल में देश को बसाएंगे. Friends, Republic Day is not just about celebration, it is about responsibility as the youth of India. It is our duty to protect our democracy and work for a better tomorrow. आओ आज यह प्रण लें, हम सब मिलकर देश के लिए जिएं, देश के लिए मरकर ईमान, मेहनत और सच्चाई के संग भारत को ले जाएं नई ऊंचाइयों पर. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जय हिंद, जय भारत. प्रोग्राम के आगे की कड़ी में मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर से रुकैया खातून को बुलाना चाहूंगी, यहाँ आए और अपना स्पीच दें. सर एंड ऑल टीचर एवरीवन, एक छोटा सा स्पीच करना चाहती हूँ. कोई त्रुटि होगी तो माफ करना. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ. मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ. मैं जून में तपती रेत पे लेटे कहता हूँ आज सर्दी कम है. मैं जून पे लेटे कहता हूँ आज सर्दी कम है. दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है. मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ. सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ. मैं इन महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ. -30 डिग्री राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ. आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ. मेरी दीवारें में उजाले का नहीं, मेरी दीवारी में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं. चाँद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे बाद में बस एक लिफाफा आता है. अपनी माँ का पैर छुए में एक अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया. मेरी बीबी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है. मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत कारी है. हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ. मैं अपने उजड़ते घरे आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता. मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से. हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ. मुझे सर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, मुझे सर है मेरी सरजमी को मुझे मेरे अपने उजाड़ेंगे. खून के मोहर से खुद को संवारेंगे. मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता. अपनों की तरफ बंदूक लेकर पढ़ नहीं सकता. मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ. मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूंगा. हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम नम की, जरा गहराई से सोचो. तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है. सभी का खून शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है. तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ, तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ. कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ. कभी न तोड़ पाएगी कोई आधी सियासत की. जुड़ो ऐसे जुड़ो कि जिंदगी की चाँद कहलाओ. पहाड़ी वादियां मैदान साहिल या की सहरा हो, तिरंगा 3 से रंगों से बना दिखता सुनहरा हो. युवा हर प्रार या पलट ले, सड़क पर खून ना होगा. मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा हो. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ. जय हिंद. बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि ये वही है. मैं थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में कि जब शुरुआत में ये आई थी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रोग्राम है किसी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत कम बोलती थी. तो खैर अब बहुत अच्छा है, आप बढ़िया की, बहुत अच्छा बोली. नेक्स्ट मैं इसी कड़ी में अब बैचलर फर्स्ट ईयर की अंश वर्मा को बुलाना चाहूंगी, वो आए अपनी स्पीच प्रेजेंट करें. नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं सहपाठियों और मेरे प्रिय दोस्तों. आज हम 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं. यह दिन हमें केवल झंडा फहराने का नहीं, बल्कि अपने
कर्तव्यों और सपनों को अपने देश के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का संदेश देता है। दोस्तों, आप सभी फार्मा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छात्र हैं। कभी कभी यह क्षेत्र कठिन, जटिल और चुनौतियां पूर्ण लग सकता है। अणुओं और प्रक्रियाओं और फार्मास्यूटिकल्स के अध्ययन में हमें धैर्य, लगन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, लेकिन याद रखिए, विज्ञान का ज्ञान ही मानवता का सेवा का मार्ग बनता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं अब आगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से सृष्टि पांडे को बुलाना चाहूंगी उनके स्पीच के लिए। वो आए और अपनी स्पीच दें। Respected Principal Sir, honorable teachers, seniors, and my dear friends, good morning to everyone. Today, we gathered here to celebrate Republic Day, a day that holds great significance in the history of our nation. On 26 January 1950, India adopted its constitution and became a sovereign democratic republic. Our constitution is not merely a collection of laws, it is the soul of our democracy. It grants us rights, but at the same time, it reminds us of our duties. True freedom is meaningful only when citizens act responsibly and contribute positively to society. At this moment, I would like to share a few lines of a poem that beautifully express the spirit of our nation. This land is not just soil and sky, it lives in dreams that never die. This land is not just soil and sky, it lives in dreams that never die. In every heart that dares to stand, beat the pride of our motherland. Friends, India's greatest strength lies in its youth. The youth of today are educated, innovative, and full of determination. If we change our energy in the right direction, India will surely emerge as a global leader. But patriotism is not limited to waving the flag or giving speeches. It is reflected in our daily actions. Being honest, respecting laws, protecting the environment, and treating everyone with respect. Though we belong to different cultures, religions, and languages, but we are united by one identity, that we are Indians. This unity in diversity is the foundation of our republic. Before I conclude, let us remind that a nation grows not by word we say, but by the values we live each day. In conclusion, I would like to say that a strong republic is built not only by the government but by responsible citizens like us. Let us pledge to uphold the values of our constitution and work together for a better and stronger India. Jai Hind, Jai Bharat. डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से मैं अंश प्रताप सिंह को बुलाना चाहूंगी उनके स्पीच के लिए। कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कि इस बिगड़ैल पड़ोसी को कब तक सांचे में ढाला जाए, कि दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं आपके सामने एक अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि कुछ इस तरह से है कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरमंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाली जगह कपाली कैलाशी, लड़की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कि कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। कि चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और सेल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना न कभी जाना, जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, और देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना। और वाह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, कि दक्षिण वाले जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते गट मराठों के राजा। कि छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कि कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी और गुरु की प्राण जगे। कि छोटी सी लकुटी वाले जिसकी छोटी सी लकटी से संगीने भी हार गईं, जिसकी छोटी सी लकटी से संगीने भी हार गईं। हिटलर को जीता वे और फौजें 7 समुंदर पार गईं। कि मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। कि स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भंवर को घूम गया,
कि आजादी को दुल्हन मानकर सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भौर को घूम गया। उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया, हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। कि आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो वो टकराओ। कि जिसके रड़ से बनता है रड़ का केसरिया बाना, कि जिसके रड़ से बनता है केसरिया रड़ का बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। कि भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कि भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है। कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर हैं। कि लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। फिर चाहे वो पैकिंग वाला या फिर रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के तुम राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ये कविता सिर्फ बीते हुए कल की याद नहीं दिलाती हमें, ये आज के युवा के लिए एक सवाल है। भगत सिंह और आजाद ऐसे वीरों ने जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जवानी त्याग दी है। तो उस हिसाब से अगर आज के युवा को हम देखा जाए तो हम सिर्फ एक रील्स में, एक्सक्यूजेस में अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त बंदूक उठाई तब मजबूरी थी, आज हमसे बंदूक उठाने के लिए नहीं बल्कि एक सोच उठाने के लिए कहा जा रहा है। आज देश को एक शहीद नहीं एक जिम्मेदार युवा चाहिए। और मैं 2 पंक्तियां और पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो कड़ को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिप्लोमा सेकेंड ईयर से गौरव साहू को बुलाना चाहूंगी उनके स्पीच के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हमारा संविधान हमें न केवल अधिकार देता है बल्कि हमारे कर्तव्यों का भी याद दिलाता है। एक फार्मेसी छात्र होने के नाते हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। हमें समाज के प्रति ईमानदार रहकर सही दवाइयों का उपयोग, मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य की सेवा करनी चाहिए। आइए हम सब एक संकल्प लें कि अपने ज्ञान और कर्म से देश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाएंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।